assistant professor from Indus Law College, and in this video we will cover up our topic law of agency for contract second semester LLB 3 years. So first of all we will discuss what is agent and what is principal. So agent and principal are defined under section 182 of the Indian Contract Act 1872. So basically agent to principal की definition it is given under section 182 of Indian Contract Act. According to this section, an agent is a person employed to do an act for another or to represent another in dealing with third person. So basically agent is a person जिसको principal appoint करता है कि वो उस principal के लिए किसी second person को साथ deal करे या फिर उसके लिए principal के लिए कोई act करे. So the person for whom such act is done or who is represented is called the principal. And basically agent जिस person के लिए वो act करता है और जिसको represent करता है that is called the principal. So principal is a person. Agent is a person who is represented by who is appointed by the person, who is employed by the person so that he can act for him or deal with third person, and the person who is represented and the person for whom such act is done or with who is represented means agent जिसको represent करता है उसको हम बोलते हैं principal. Law of agency has been defined under chapter 10 of the Indian Contract Act, and law of agency जो है हमारे chapter 10 of the Indian Contract Act में डिस्कस है. Now we will discuss who can employ an agent, कि agent को कौन employ कर सकता है. So there are some conditions that need to be fulfilled. उसी के basis पे आप किसी को मतलब आप agent as an agent किसी को employ कर सकते हो. Person who has attained the age of majority, मतलब अगर किसी person ने age of majority like if he is above 18 years तो वो agent को employ कर सकता है. अ पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, जो पर्सन साउंड माइंड है वो एजेंट को अपॉइंट कर सकता है. अ पर्सन मीटिंग विद दीज टू क्राइटेरिया इज लीगली अलाउड टू एम्प्लॉय एन एजेंट. सो बेसिकली ये क्या है, जो प्रिंसिपल होता है उसको या तो एज ऑफ मेजॉरिटी का होना चाहिए या फिर वो साउंड माइंड होना चाहिए. नेक्स्ट इज हु कैन बिकम एन एजेंट. तो पहले हमने डिस्कस करी दैट हु कैन बी अ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है और कौन एम्प्लॉय कर सकता है एजेंट को. नेक्स्ट इज और हु कैन बिकम एन एजेंट, और एजेंट कौन बन सकता है. Any person can become an agent who has attained the age of majority as per the law to which he is subjected. Means if person has attained the age of majority, so he can be employed as an agent. And a sound mind so that he is responsible to the principal. और जो agent है उसको sound mind हो जाना होना चाहिए so that he can be responsible to the principal. Next is who can become an agent, that we have already discussed. Next we will discuss is agent's authority. एजेंट की क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, लाइक अगर वो प्रिंसिपल के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी एजेंट की खुद की कुछ अथॉरिटीज़ होती है. दैट विल डिस्कस. द अथॉरिटी एक्सरसाइज बाय द एजेंट कैन ईदर बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड. तो जो अथॉरिटी होती है एजेंट की वो एक्सप्रेस्ड हो सकती है और इम्प्लाइड हो सकती है. So now we will discuss what is agent's authority. The authority exercised by the agent can either be expressed or implied. तो मतलब एजेंट की जो अथॉरिटी होती है it could be expressed or implied. Illustration 1. A appoints B as his agent and tells him to go to the bank and deposit A's money. This is an expressed authority from A to B. तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है बी को एक्सप्रेसली बोल रहा है कि तुम बैंक जाओ एंड डिपॉजिट माई मनी इन बैंक. तो यहाँ पे एक्सप्रेसली शो हो रहा है कि हाँ भाई ए ने बी को अपॉइंट करा है किसी काम के लिए. इलस्ट्रेशन बी इज ए ओन्स ए शॉप इन कोलकाता बट रिजाइड्स इन दिल्ली. ए हैज़ हायर्ड बी टू मैनेज द शॉप. मतलब ए जो है उसकी एक शॉप है कोलकाता में बट वो रहता दिल्ली में. तो उसने क्या करा, एक हायर करा बी को एज एन एजेंट की जो भी उसकी शॉप है कोलकाता में वो उसको
मैनेज कर सके। बी बाइज गुड्स इन द नेम ऑफ ए फॉर ए शॉप। अब बी क्या करता है, जो उसका एजेंट है वो ए की शॉप के लिए ए के नेम पे गुड्स लेके आता है। तो हेयर इट इज़ एन इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पे क्या है, ए ने बी को इम्प्लाइड अथॉरिटी दे रखी कि मतलब बी जो भी काम कर रहा है वो चाहे अपने नेम पे कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो काम किसके लिए कर रहा है, प्रिंसिपल के लिए कर रहा है। An agent has authority to do whatever is needed for the fulfillment of his duties towards the principal while staying in the legal ambit. On the other hand, एजेंट के पास तो सारी अथॉरिटीज़ होती हैं जो भी अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल करने के लिए उसको होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर वो प्रिंसिपल के टूवर्ड्स उसकी ड्यूटी है और उसके अकॉर्डिंगली अगर उसके पास उसको कुछ करना है, मतलब एजेंट को प्रिंसिपल की ड्यूटी के टूवर्ड्स कुछ करना है, तो उसके पास सब अथॉरिटीज़ होती है, वो सारे वो एक्ट कर सकता है जिससे कि वो प्रिंसिपल के टूवर्ड्स अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफिल कर सके। बट इट should all be done in legal ambiguity. Any action of his must not be illegal during discharge of his duties. Illustration 3 is A has employed B in his shop. A asked B to buy some things for the shop. A ने B को एज एन एजेंट एम्प्लॉय किया एंड A B को बोलता है कि वो उसकी शॉप के लिए कुछ गुड्स लेके आए। B should use only legal means to obtain those things. तो इसलिए B जो एजेंट है उसको जो भी गुड्स लेने हैं एक ही शॉप के लिए वो सब लीगल मीन्स से लेने चाहिए। वो कोई भी इलीगल तरीके से, मतलब एज एन एजेंट वो कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं कर सकता। सो बी कैनॉट स्टील और डू समथिंग विच इज़ इलीगल। तो मतलब जो भी काम एजेंट कर रहा है वो लीगल एम्बिट में उसको करना चाहिए। तो जो भी इसकी अथॉरिटीज़ है दैट शुड ऑल बी इन लीगल एम्बिट। नेक्स्ट इज एजेंट्स ड्यूटी टूवर्ड्स प्रिंसिपल। अब एजेंट की कुछ ड्यूटीज़ होती है प्रिंसिपल की टूवर्ड्स, दैट विल डिस्कस। देयर आर वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल। फर्स्ट ही मस्ट फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। तो जो एजेंट है उसको सारी वो डायरेक्शंस फॉलो करनी चाहिए जो भी प्रिंसिपल ने उसको बोला है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल एंड डिलीजेंस, मतलब स्किलफुली और डिलीजेंटली अपना काम करना चाहिए। मेंटेन द अकाउंट्स को मेंटेन रखना चाहिए। एंड कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू रिसीव इंस्ट्रक्शन। एंड टाइम टू टाइम एजेंट को कम्युनिकेट करना चाहिए प्रिंसिपल से सो दैट ही कैन रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज हाउ एन एजेंट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ड्यूटीज़। अब विल डिस्कस कि जो एजेंट है उसको कैसे उसकी ड्यूटीज़ से डिस्चार्ज, मतलब कैसे जो एजेंट्स की ड्यूटीज़ है प्रिंसिपल की तरफ वो कैसे डिस्चार्ज हो सकती है, वो कैसे ख़त्म हो सकती हैं। फर्स्ट इज़ व्हेन द प्रिंसिपल रिवोक्स द एजेंट्स अथॉरिटी, कि प्रिंसिपल खुद से एजेंट की अथॉरिटी को कैंसिल कर दे। व्हेन द एजेंट हिमसेल्फ लीव्स द एजेंसी, जब एजेंट खुद अपनी एजेंसी को लीव कर दे तब। व्हेन द बिजनेस इज़ कम्प्लीट, कि मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कोई बिजनेस क्रिएट हुआ था और वो टास्क कम्प्लीट हो गया है, तो उस केस में क्या होता है, इन दैट केस जो एजेंट की जो ड्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इफ़ द प्रिंसिपल डाइज, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है। इफ़ द एजेंट डाइज, इफ़ द प्रिंसिपल बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर प्रिंसिपल खुद अनसाउंड माइंड का हो गया तो एजेंट किससे इंस्ट्रक्शंस लेता है, तो इन दैट केस एजेंट की जो अथॉरिटीज़ होती है, एजेंट की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो सब डिस्चार्ज हो जाती हैं। इफ़ द एजेंट बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर एजेंट खुद अनसाउंड माइंड का हो जाए। और द प्रिंसिपल बी डिक्लेयर्ड एन इंसॉल्वेंट, और अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए तो इन दैट केस ऑल्सो जो एजेंट की ड्यूटीज़ होती है वो डिस्चार्ज हो जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ सब एजेंट। अब क्या होता है, प्रिंसिपल एजेंट को कौन अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है। अब सब एजेंट इज़, अगर एजेंट किसी को अपॉइंट करता है एज इज एजेंट तो वो होता है सब एजेंट। मतलब मीन्स इफ प्रिंसिपल हैज़ अपॉइंटेड एन एजेंट तो वो एजेंट होगा, और अगर एजेंट किसी थर्ड पर्सन को उसके लिए अपॉइंट करता है अपने काम के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड ए सब एजेंट। अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय द एजेंट इज़ कॉल्ड ए सब एजेंट, ही एक्ट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट। तो मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसको एजेंट अपॉइंट करता है दैट इज़ कॉल्ड ए सब एजेंट, और वो एजेंट के कंट्रोल के अंदर काम करता है, सब एजेंट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड द प्रिंसिपल। अभी तक वी हैव डिस्कस कि रिलेशनशिप होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल के बीच में। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सब एजेंट एंड प्रिंसिपल। So the principal is responsible for all the acts of frauds and willful wrongs of the sub-agent who has been properly employed by the agent. प्रिंसिपल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उन सब एक्ट के लिए, सब एजेंट के उन सब एक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स के लिए जो भी सब एजेंट ने किए हैं। फाइन, मतलब अगर एजेंट किसी पर्सन को एज सब एजेंट अपॉइंट करता है और वो सब एजेंट कोई फ्रॉड्स या विलफुल रॉन्ग करता है तो उन सब चीज़ों के लिए प्रिंसिपल भी लायबल होगा। द एजेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल के जो भी सब एजेंट ने एक्ट करे हैं। फाइन, तो मतलब सब एजेंट ने जो भी एक्ट करे उसके लिए लायबल कौन होगा, सब एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल के टुवर्ड्स। मतलब अगर सब एजेंट ने कोई एक्ट करा है तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट के लिए, एंड एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। So in this video we have discussed our topic law of agency. In our next video we will discuss our topic sale or essentials of sale and many other things that will be related to contract of sale.